ये आकाशवाणी है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी। प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। यू विल नाउ लिसन टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे। क्वेश्चन नंबर 301 श्री केसरी देव सिंह झाला। प्रश्न संख्या 301। क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क सरकार द्वारा ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और अन्य नए उभरते बाजारों को ताजे फलों का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है? ख व्यापार में इस महत्वपूर्ण उपलब्धि से भारतीय किसानों को कौन से विशिष्ट लाभ प्राप्त होंगे और क्या अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराने की कोई योजना है? ग अंतरराष्ट्रीय व्यापार को मजबूती प्रदान करने के लिए मौसमी फलों सहित निर्यातित भारतीय कृषि उत्पादों द्वारा वैश्विक पादप स्वच्छता और गुणवत्ता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या पहल की जा रही है? और घ सरकार किसानों और निर्यातकों की प्राचालन तंत्र संबंधी बाधाओं को कम करने के लिए विनाश्य कृषि उत्पादों की समुद्री मार्ग से ढुलाई की लागत कुशलता को बढ़ाने के लिए कौन सी कार्य नीतियाँ तैयार कर रही हैं? ऑनरेबल मिनिस्टर श्री जितिन प्रसाद, वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री। सप्लीमेंट्री वन श्री केसरी देव सिंह झाला। सर, वीर शिरोमणि राणा सांगा के चरणों में नमन करके मेरा क्वेश्चन मैं मंत्री जी के सामने रखना चाहूंगा। सर, वुड द मिनिस्टर बी प्लीज टू स्टेट वेदर there are any cold storage infrastructures being put up in the ports to avoid any fruits that rot due to the turning of time at the ports? Honorable Minister. Sir, as far as the question which the Honourable Member has asked regarding cold storages and the food chain, food supply chain later post-harvesting with regard to fruits which are being exported, I would like to inform through you to the House and to the Honourable Member that a lot has been done through the Ministry of Commerce and the department concerned, the APEDA, which is working continuously and has made considerable headway as far as fruits export goes. There has been an increase of 47.5% in these 5 years with regard to our exports. And the major fruits that have been exported from India are mango, grapes, banana, apples, oranges, pomegranate, pineapple and watermelon. And I would also bring to his notice that under the APEDA, we have the Food Export Promotion Scheme, under which 3 major things have been earmarked. And one is the export infrastructure component, which the member has raised regarding to cold storages. I would like to inform him and the House through you that the financial assistance scheme has insured beneficiaries to the extent of 71 beneficiaries amounting to 44.69 crores in different parts of India. And presently there are 48 cases of pack houses, cold storages, and refrigerated vans which are under examination, and I can assure you that the government is leaving no stone unturned to ensure that our food and fruit supply to exports are promoted, and there is a lot of headway that we've made and development on post-harvest handling facilities, developing cold chain networks in the form of integrated pack houses, reefer vehicles, in-house testing facilities to maintain high quality and longevity of fruits, as well as treatment facilities like vapor heat treatment and hot water treatment to mitigate the infestation incidence of pests on specific fruits. Also, exporter participation, FPOs and international trade fairs that has been continuously been done. A lot of organization has been done on buyer-seller meets, campaigns in print and electronic media, and of course training and capacity building for our farmers, FPOs, exporters, self-help groups. 77,000 stakeholders have been trained so far and capacity building measures have been taken. A lot has been done by this government to increase the packaging standards that have been developed. So we are ensuring that the fruits which are sent abroad, the packaging is such there's enough breathing, there's more freshness that is maintained. And I can tell you, as far as a specific fruit, lychee, is concerned, especially from Bihar, and Uttarakhand and Punjab,
that first, through the old outdated packaging, it was only the shelf life was 3-4 days. But with the increased packaging, it has become 15 days, and we are doing very well on this front. Thank you. Second supplementary. Sir, I'd like to ask the Honorable Minister whether any online portals in the country which have specific guidelines, regulations for phytosanitary standards is being maintained to help exporters, traders and farmers comply with and make their products more export compliant. माननीय मंत्री जी, Sir, yes, with regard to the question that honourable member has asked, with regard to phytosanitary compliances, like I had said, a lot of training and capacity building has been done, as well as a website on APIDA, on Agri Extension Portal. It's there, through which a lot of information is available, and I can assure you that we are doing everything to ensure the quality of our products and fruits and the freshness and the pesticide levels are very low, conforming to international standards. We not only ensure that within India there is pesticide nothing is going on record. Please sit down. You have not. without no, pesticide please. free, as well as through international markets, because any product that goes out of India is brand India and the name of India, and no stone is being left unturned A to question ensure hour, please the take your credibility seat. and the quality of our Nothing will go on products record. and the Nothing fruits will go on that are record. being sent abroad. Nothing. Thank you. Mr. Rajiv Shukla, your question. Mr. Rajiv Shukla, your question. सर, मैं मंत्री से जानना चाहता हूं कि साइट्रो सैनिटरी और क्वालिटी स्टैंडर्ड के नाम पे और जो है पेस्टिसाइड ज्यादा होने की वजह से तमाम जो है फल निर्यातकों को यहाँ परेशान किया जा रहा है और उनको ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्री परेशान कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, आप जैसे take your कि seats. किसी माननीय को सदस्य ने question जो और सवाल please. पूछा है, क्वेश्चन और है. नो, प्लीज. मैं इसके बारे में ये सूचित करना चाहता हूं कि सरकार की जिम्मेदारी है और हमने हर एक प्रत्येक कदम उठाया है कि इंश्योर कर रहे हैं कि भारत के अंदर भी क्वेश्चन और है. किसी आप तरीके make का करो, कोई और इशू नहीं. पेस्टिसाइड का जो मिनिमम रेजिड्यू लिमिट्स है वो एक्सीड ना हो. विदेश में भी जो हमारी बायर कंट्रीज हैं, इंपोर्टर कंट्रीज, उसके अधीन जो मानक हैं वो पूरे किए जाते हैं. बाकायदा ट्रेसिंग ऑफ लैब्स, फार्म्स, प्रोडक्ट्स की कोई भी किसी तरह की कमी ना रह जाए. और जो साइटोसैनिटरी नॉर्म्स हैं वो इंपोर्टिंग कंट्री द्वारा तय किए जाते हैं और हमारे एक्सपोर्टर्स पूरी तरीके से जो गाइडलाइंस है उसका पालन करते हुए क्वालिटी और उस पर खास ध्यान रखते हुए कि किसी तरीके की भी कोई कमी भारत के प्रोडक्ट्स में ना आए, कि भारत के ब्रांड में कोई आंच ना आए, ये हमारी खास प्राथमिकता है. माननीय रीता ब्रत बनर्जी, योर क्वेश्चन. Your question. Thank you, sir. This is question My hour, supplementary only is question and India answer can be loses discussed. nearly Nothing else will 30 go to in record. 40% of perishable agricultural produce due to inadequate cold storage and logistic infrastructure. This has led to consignments of Indian fresh fruits being rejected by foreign countries in the past 3 years also. I want to know through you, sir, from the government, what step is the government taking to improve cold chain storage and reduce post-harvest losses, particularly for export-bound fresh fruits? Thank you, sir. Answer, माननीय मंत्री जी. So like I said before as well, utmost care and been taken to ensure quality and minimum residual limits as far as pesticides are concerned. There are a lot of challenges in this field with regard to the way India, where our supply chains, cold chains, and a lot of improvements in the supply chain gaps have been filled up, and we are working with the Ministry of Agriculture to develop cold chain network in India. Our sea protocols have been increased and made better to ensure the longevity of our products. Like I said about packaging, the temperature of the containers through sea, and also ensuring the market access to different parts of the world, as well as ensuring that the quality of the products through the various stringent guidelines which the importer country sets are met. As far as the headway that we've made, a lot of headway in terms of, in Canada, fresh bananas have been sent. In Australia, USA, Serbia, New Zealand, pomegranate has been sent. And of course, as far as other issues are concerned, West Bengal, to bring it to his notice, the Center for Perishable Cargo, CPC, the total sanctioned amount is 299 crores, lakhs.
And for the CPC at Calcutta Airport, there also 675 lakhs has been sanctioned till date, and all efforts are being made to ensure that the number of beneficiaries support provided to individual exporters, that has also gone to 14,27,353. Farmers are being provided support through implementation of GAP certification for quality production of export to the world. Capacity building training programs, more than 22 training capacity building programs have been carried out in the state of West Bengal specifically, physically and virtually, and more than 2,500 stakeholders participated across 11 districts in West Bengal. Dr. Kalpana Saini, last supplementary on this ये question. सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ, क्या सरकार ने नए निर्यात बाजारों की पहचान करने के लिए कोई रणनीति बनाई है? यदि हाँ, तो क्या इस रणनीति के अंतर्गत ताजे फलों का निर्यात बढ़ाने के लिए विशेष योजना बनाई जा रही है? माननीय मंत्री जी। जी बिल्कुल, माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और लगातार सरकार नए मार्केट्स विभिन्न मंत्रालयों के साथ और देशों के साथ प्रयासरत है और मुझे बड़ी खुशी है ये सूचित करने के लिए कि जो हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं, खास तौर से यूएई से, जहां बहुत बढ़ोतरी हमें फ्रूट एक्सपोर्ट्स पे हुई है, में 27% बढ़ोतरी हुई है, और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ भी जो हुआ है वहाँ पर भी जो मार्केट एक्सेस और इंपोर्ट जो टैरिफ बैरियर्स होते हैं उनको हटने के बाद 6% एक्सपोर्ट वृद्धि हुई है। इसी तरीके से पूरे विश्व भर में प्रयास किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा भारत के फल विदेशों में जाएं और हम लोगों के एक्सपोर्टर्स की आमदनी बढ़े और हमारे किसानों की आय बढ़े, और प्रयास किया जा रहा है कि जितने और मार्केट्स हैं उन पे भी हम प्रयास करें। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 302, माननीय श्री तेजवीर सिंह। प्रश्न संख्या 302, क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि डिजिटल फसल सर्वेक्षण के अंतर्गत एकत्रित किए गए आंकड़ों की सटीकता को सत्यापित करने के लिए कौन कौन से तंत्र मौजूद हैं ताकि दोहराव या त्रुटियों को रोका जा सके? किसानों के व्यक्तिगत आंकड़ों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से विशेष सुरक्षा उपाय लागू किए जा रहे हैं? और सरकार किस प्रकार सुनिश्चित करेगी कि महिला किसानों को डिजिटल किसान आईडी समान रूप से उपलब्ध हो सके? माननीय मंत्री जी। श्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। माननीय उपसभापति जी, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। पहला सप्लीमेंट्री तेजवीर सिंह जी। क्या माननीय मंत्री जी ये बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार किसानों को डिजिटल कृषि मिशन का प्रभावी उपयोग करने के लिए स्मार्टफोन और इंटरनेट एक्सेस जैसी डिजिटल सुविधाएं खरीदने हेतु सब्सिडी देने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी विवरण क्या है? माननीय उपसभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य का हृदय से आभारी हूं तेजवीर जी का। उन्होंने एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। माननीय उपसभापति जी, एक बहुत बड़े उपन्यासकार श्रीलाल शुक्ल थे जिन्होंने राग दरबारी एक उपन्यास लिखा था। उसमें एक पात्र था किसान लंगड़। वो लंगड़ अपने खेत की नकल प्राप्त करने के लिए तहसील जाता है, एक नहीं अनेकों दिनों तक वो एक अधिकारी के पास, फिर दूसरे अधिकारी के पास, एक विभाग के पास, फिर दूसरे विभाग के पास, फिर तीसरे विभाग के पास भटकता रहता है और अंततः उसे नकल नहीं मिलती। इस लंगड़ की तकलीफ को कभी सामने वालों ने नहीं समझा, आज भी नहीं है वो यहाँ। इस तकलीफ को समझा तो हमारे विजनरी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने समझा। छोटे छोटे कामों के लिए किसान परेशान होता है, उसको एमएसपी पे अपनी फसल बेचना है, कागज इकट्ठे करो, खेत में क्या बोया था, कौन सी फसल थी, प्रमाण लेके आओ। उसको बैंक लोन लेने जाना है तो बैंकों के चक्कर लगा लगा के थक जाता था, इतनी औपचारिकता होती थी, ये कागज लाओ, ये कागज लाओ, ये कागज लाओ। प्राकृतिक आपदा में नुकसान की भरपाई होना है, कागज इकट्ठे कर करके परेशान। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने और इस सरकार ने डिजिटल कृषि मिशन बना के उस किसान की सारी दिक्कतें समाप्त करने का फैसला माननीय उपसभापति महोदय किया है। ये डिजिटल पहचान एक फार्मर आईडी बनेगी जिसमें किसान की जानकारियां, अब उसकी फार्मर आईडी में
उसके पास कितनी जमीन है, खसरा नंबर क्या है, उसके परिवार में कितने सदस्य हैं, वो और खेती के अलावा कौन कैसा काम करता है, कितने पशु है, क्या कृषि वानिकी का काम कर रहा है, क्या बागवानी के काम में भी लगा, सारा डाटा माननीय उपसभापति महोदय एक ही जगह अब उसको प्राप्त हो जाएगा। ये आजादी के अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण के लिए, विकसित कृषि और समृद्ध किसान के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा उठाया गया बहुत क्रांतिकारी कदम है। इसके लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। माननीय उपसभापति जी, माननीय सदस्य जो सवाल पूछ रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सारी जानकारी स्मार्टफोन पर मिलेगी। स्मार्टफोन, और स्मार्टफोन अब लगभग हर एक के पास है। 60 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन आज भारत में है। किसान तो क्या, मजदूर के हाथ में भी स्मार्टफोन होता है, और इसलिए अगर उसको जानकारी प्राप्त करना तो स्मार्टफोन के माध्यम से प्राप्त करेगा। अगर उसके पास स्मार्टफोन नहीं है तो वैकल्पिक व्यवस्था भी है। वो कृषि सखी के पास जा सकता है, एफपीओ के पास जा सकता है, कॉमन सर्विस सेंटर में जा सकता है, और ये जानकारियां उसको प्राप्त करके सुविधाओं का लाभ ले सकता है। इसलिए सब्सिडी की फिलहाल कोई योजना इस तरह की निःशुल्क देने की फिलहाल नहीं है, लेकिन मैं तेजवीर सिंह जी से कहना चाहूंगा, ये इतना क्रांतिकारी कदम है जो भारत के किसानों की जिंदगी बदल कर रख देगा। 4 करोड़ 60 लाख से ज्यादा फार्मर आईडी बन चुकी है, और बाकी फार्मर आईडी बनाने का काम भी राज्य सरकारों के सहयोग से तेजी से हो रहा है। मैं तो माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि आप भी इसमें सहयोग करें ताकि सभी किसानों की फार्मर आईडी बन सके। बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपने एक बड़ी उल्लेखनीय पुस्तक का उल्लेख किया अपनी तकरीर में, श्रीलाल शुक्ल जी की राग दरबारी। वह तत्कालीन 70 और 80 के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक प्रशासनिक चीजों का अद्भुत दस्तावेज है समाज का। सुलता देव जी। थैंक यू डिप्टी चेयरमैन सर। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ कि उड़ीसा एक नेचुरल कैलामिटीज फेस करने वाला स्टेट है, बार बार वहाँ पर किसानों का क्रॉप लॉस होता है। मैं ये जानना चाहती हूँ जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसके चलते 5 साल में कितने कार्ड बनाए गए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, और जो क्रॉप लॉस हुआ है 5 साल में इसका बेनिफिट कितने किसानों को, कितना अमाउंट रिलीज हुआ है उड़ीसा के लिए। थैंक यू सो मच सर। माननीय सभापति जी, ये मूल प्रश्न से उद्भूत ये सवाल नहीं होता, लेकिन माननीय सदस्य ने पूछा है। एक तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कार्ड नहीं बनते। प्रधानमंत्री फसल योजना में किसान स्वेच्छा से अपनी फसल का बीमा करवाता है, वो ऋणी किसान हो, वो अऋणी किसान हो। अगर वो चाहेगा तो उसकी फसल का बीमा होगा। और मुझे बताते हुए ये प्रसन्नता है माननीय उपसभापति जी कि लोनी और अलोनी दोनों तरह के किसान अब फसल बीमा योजना करवा रहे हैं, और आज मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि फसल बीमा योजना आज दुनिया की सबसे बड़ी फसल योजना, बीमा योजना बन गई है, दुनिया की सबसे बड़ी फसल योजना। माननीय उपसभापति महोदय, 2016 में योजना प्रारंभ की थी, 16-17 से लेके अब तक 7,708 लाख किसान आवेदन को इस बीमा योजना के तहत बीमा कवर मिला है, और दावे के रूप में 1,74,432 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है, और इसमें किसान का प्रीमियम केवल 32,000 करोड़। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है कि 32,000 करोड़ के फसल बीमा के बदले, प्रीमियम के बदले 1,74,432 करोड़ रुपया किसान के खातों में गया है। धन्यवाद। माननीय तेजवीर जी, आपका दूसरा सप्लीमेंट्री रह गया था, आप प्लीज पूछ। मैं माननीय किसान एवं कल्याण मंत्री से ये जानना चाहूँगा कि क्या पूर्व की सरकारों यूपीए में डिजिटल कृषि योजना थी? डिजिटल कृषि को लेकर यूपीए सरकार का क्या रुख था? डिजिटल धोखाधड़ी या किसानों के डेटा को दुरुपयोग को रोकने के लिए कौन कौन से विशिष्ट उपाय लागू किए गए हैं? माननीय उपसभापति महोदय, अगर पूर्व की सरकार में ये योजना होती तो लंगर रोता क्यों? और शुक्ल जी को ये उपन्यास क्यों लिखना पड़ रहा? मुझे कहते हुए तकलीफ है। आजादी के बाद बरसों तक जिन्होंने राज किया उनने किसानों की इस तकलीफ को कभी नहीं समझा। माननीय उपसभापति जी, मैं कई बार हैरत में रह जाता हूँ यूपीआई पेमेंट का। जब उस तरफ की सरकार थी और तत्कालीन वित्त मंत्री थे, उन्होंने मजाक उड़ाया था। वो कहते थे गांव में जाइए, टमाटर आलू लीजिए, क्या पीओएस मशीन होगी?
क्या वहां इंटरनेट है, क्या वहां बिजली है? ऐसे में कैसे पीओएस चलेगी? ये उनका सोच था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज गांव-गांव जाइए माननीय उपसभापति जी, हर सब्जी की दुकान पर, सड़क पर लोग पीओएस मशीन लगाकर अपना व्यापार बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लगभग सभी गांव में किसी न किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के टावर लगे हुए हैं, लाखों कॉमन सर्विस सेंटर खुले हैं। कृषि सखी एफपीओ के माध्यम से परिवार के किसी न किसी परिवार के हाथ में, सदस्य के हाथ में स्मार्टफोन है, जिसके माध्यम से आम लोग डिजिटल रूप से सशक्त हो रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। डिजिटल क्रांति से सेवाओं में और योजनाओं का लाभ देने में क्रांतिकारी परिवर्तन किया जा सकता है। आज आप देखेंगे, एक प्रधानमंत्री थे एक जमाने में जो ये कहते थे 1 रुपया भेजता हूं 15 पैसा पहुंचता है। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार में भागलपुर में अगर एक बटन दबाते हैं, क्लिक करते हैं, तो 9 करोड़ 80 लाख किसानों के खाते में सीधा पैसा पहुंच जाता है। और गिरिराज जी उस कार्यक्रम में थे, मैंने बताया था पहले, सामने 22,000 करोड़ रुपया किसान मोबाइल दिखा के कहता आ गया पैसा खाते में आ गया। ये डिजिटल क्रांति के कारण संभव हुआ है। जनधन योजना, आधार, मोबाइल, आम आदमी के बैंकों में खाते खुलवा के, जिनमें बहनों की बड़ी संख्या है। एक नई क्रांति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय उपसभापति महोदय हुई है। डिजी लॉकर, ई साइन सुविधा, ई केवाईसी, पेमेंट गेटवे, एकीकृत भुगतान, कितनी सुविधाएं जनता को मिली है। केवल खेती के क्षेत्र में नहीं, स्वास्थ्य रिकॉर्ड ज्ञान साझा करने के लिए भी इलेक्ट्रिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड, सरकारी ई मार्केट प्लस जो भारत का ई कॉमर्स पोर्टल है, व्यापार उससे आसान हुआ है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। किसानों की समस्या का समाधान होना चाहिए। छोटी छोटी चीजों के लिए उसको ना भटकना पड़े, और इसलिए ये डिजिटल कृषि मिशन बनाया गया है। माननीय सभापति महोदय, अब किसानों का प्रमाणित विवरण किसान रजिस्ट्री में एक जगह मिलेगा। उनकी भूमि जोत, परिवार का विवरण, बोई गई फसलें, सॉइल के बारे में कौन कौन से पोषक तत्व है, उपयोगी और व्यापक डाटा मिलेगा। ऋण, बीमा खरीद, बेचने सुविधाएं, एक नहीं अनेकों योजनाओं का लाभ और नई सुविधाएं उसको मिलेगी। माननीय उपसभापति महोदय, जहां तक हमारे आधार और किसान आईडी का सवाल है, मैं ये बताना चाहता हूं कि नागरिक आधार कार्ड ये बताता है कि वो भारत का निवासी है, नागरिक, लेकिन किसान पहचान पत्र देश भर के किसानों के लिए एक विशिष्ट पहचान पत्र है जो सारी जानकारी, जमीन, पशुधन, मत्स्य पालन, फसल जो भी है उसका प्रमाण देता है। इस किसान रजिस्ट्री के निर्माण के बाद सभी पंजीकृत किसानों को उनके संबंधित राज्यों द्वारा विशिष्ट आईडी और उनकी फसल और भूमि के विवरण के साथ किसान पहचान पत्र दिया जाएगा। किसान पहचान पत्र किसान के लिए सरकारी योजनाओं का और सेवाओं का लाभ लेने का बहुत आसान दस्तावेज है, जिसका भूमि राजस्व प्रणाली और किसान की वित्तीय जानकारी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए जहां आधार की संवेदनशीलता के कारण आधार अधिनियम आधार नंबर साझा करने पर प्रतिबंध लगाता है, किसान आईडी पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। इस तरह इसकी उपयोगिता कृषि से संबंधित लाभ और सेवा प्रदान करने में निहित है। ये बहुत उपयोगी सौगात प्रधानमंत्री जी ने अपने देश के किसानों के लिए दी है। धन्यवाद। श्रीमती किरण चौधरी जी। श्रीमती किरण चौधरी जी। Thank you, sir, for giving me the opportunity. I would like to ask the Honorable Minister, and also I would like to thank him at the great initiatives that are being taken towards farmers' empowerment. I would like to ask him, sir, that what steps are being taken to address technological challenges such as low internet penetration, lack of smartphone access, or digital illiteracy that may hinder farmers from fully benefiting from the digital crop survey initiative. And also that will this digital crop survey data be integrated with any other agricultural welfare scheme such as Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi? माननीय मंत्री। माननीय उपसभापति जी, विकसित भारत के निर्माण के लिए अनेकों पहलें की जा रही है और इसलिए जो अलग अलग समस्याएं किसानों का दर्द समझने वाली माननीय सदस्य ने बताया है, मैं
उनका आदर करता हूं, लेकिन चाहे इंटरनेट का सवाल हो या बाकी सुविधाएं धीरे धीरे देश में लगातार बढ़ती जा रही है और इसलिए इन समस्याओं का समाधान अपने आप बढ़ती हुई सुविधाओं के कारण होता चला जाएगा और किसान को इन सुविधाओं का लाभ लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहां दिक्कत आएगी उसका समाधान करने का भी हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद। लास्ट सप्लीमेंट्री डॉक्टर के लक्ष्मण। Thank you, Vice Chairman, sir. At the outset, I would like to thank the Modi ji government, a pro-farmer-friendly government, taking such initiative steps, introduction of this digital crop survey, a revolutionary innovative step, sir, because the data is being directly collected from the field through mobile. I would like to know through you, sir, the Honorable Minister, what mechanisms are in place to audit and verify the accuracy of data collected under the digital crop survey, and how is farmers' personal data being protected from unauthorized access or breaches and also kept confidential? Thank you, sir. माननीय मंत्री जी। माननीय उपसभापति जी, एक तो किसानों का डेटा जो है ये निजी डेटा है। जब तक किसान डेटा साझा करने के लिए अपनी स्पष्ट सहमति नहीं देता तब तक इसे साझा नहीं किया जाएगा। एग्रीस्टैक सहमति का प्रावधान इसको और मजबूती प्रदान करता है। किसान को डेटा के साझाकरण पर सीधा नियंत्रण, मतलब वो चाहेगा तो सहमति देगा डाटा किसी के साथ शेयर करने की, वो चाहेगा तो सहमति नहीं देगा। किसान सहमति दे के अपनी सहमति रद्द करने का काम भी कर सकता है और इसलिए डेटा की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के और उनका दुरुपयोग रोकने के लिए डाटा चाहने वाली एजेंसियों को पंजीकरण के दौरान सरकार के समस्त डेटा और सुरक्षा नियमों और अधिनियमों का माननीय उपसभापति जी पालन करना ही होगा, जिससे इसके दुरुपयोग की संभावनाओं को पूरी तरह से निर्मूल किया जा सकेगा। एग्रीस्टैक इस तरह से बनाया गया है कि किसान को यह भी पता होगा कि उसका डाटा कहां साझा किया जा रहा है। किसान अपने डेटा का उपयोग करके सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उनके दुरुपयोग की संभावनाओं को माननीय उपसभापति जी पूरी तरह से निर्मूल करने का प्रयत्न किया गया है। इसलिए ये बहुत उपयोगी है, किसान की इच्छा पर निर्भर है और इसका दुरुपयोग संभव नहीं है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 303 माननीय श्री ब्रिजलाल जी। प्रश्न संख्या 303, क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क डिजिटल धोखाधड़ी या किसानों के डेटा के दुरुपयोग रोकने के लिए कौन कौन से विशिष्ट उपाय लागू किए गए हैं? ख, क्या सरकार डिजिटल कृषि मिशन DAM का प्रभावी उपयोग करने के लिए किसानों को स्मार्टफोन या इंटरनेट कनेक्शन जैसी डिजिटल सुविधाओं की खरीद के लिए राज्य सहायता उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है? और ग, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? माननीय मंत्री जी। श्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है माननीय उपसभापति महोदय। पहला सप्लीमेंट्री ब्रिजलाल जी। उपसभापति महोदय, मेरा प्रश्न है, क्या किसानों का डेटा सभी के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होगा? सरकार यह कैसे सुनिश्चित कर रही है कि किसानों का डेटा सुरक्षित रखा जाए और उसका दुरुपयोग न हो? किसानों को कैसे पता चलेगा कि उनका डेटा साझा किया जा रहा है और वह अपना डेटा साझाकरण से कैसे लाभ उठा सकते? धन्यवाद। माननीय उपसभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य ब्रिजलाल जी का आभारी हूं। उन्होंने ये महत्वपूर्ण सवाल उपसभापति महोदय किया है। माननीय उपसभापति महोदय, जैसा मैं पहले निवेदन कर रहा था, किसानों का ये डेटा बिल्कुल उनका निजी डेटा है। इस डेटा को उनकी सहमति के बिना दूसरे से साझा नहीं किया जा सकता, इसलिए पूर्णतः उसकी मर्जी पर है कि वो सहमति दे ना दे। इसके अतिरिक्त ये डेटा राज्य सरकार के पास सुरक्षित रहेगा। डेटा जब साझा किया जाएगा तो ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जानकारी उसी तक जाए जिस तक ये डेटा जा रहा है। लेकिन किसान इस डेटा का लाभ अनेकों योजनाओं का और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए उठा सकता है। जैसे मैंने पूर्व में भी निवेदन किया था, इस डेटा में जो व्यवस्थाएं की गई है, नंबर 1, किसान के खेत में उगाई जाने वाली फसल, कौन सी फसल है, एक फसल है, एक से ज्यादा फसल है,
अभी ये लिखने का काम करता है लेखापाल या पटवारी। कई बार वो चने की जगह अगर गन्ना लिख दे तो कोई कुछ नहीं कर पाता, और ऐसी शिकायतें आती है, नुकसान हो गया। और नुकसान की भरपाई के लिए आकलन करने क्षति का जाना पड़ता है आदमी को। मैनुअली जाता है तो अगर दिमाग में गड़बड़ हुई तो जिसका नुकसान होता है उसका नुकसान लिखता ही नहीं। ऐसी कई बार शिकायतें आती है। भ्रष्टाचार की भी कई संभावनाएं उस पर रहती है। लेकिन अब डिजिटली अगर उसको फसल का क्षति का आकलन करना है तो सर्वेयर घर पर बैठकर आकलन नहीं कर सकता, उसको खेत में जाना पड़ेगा, फोटो कैप्चर करनी पड़ेगी। बिना उसके डेटा कैप्चर ही नहीं होगा। डिजिटल धोखाधड़ी और किसानों के डेटा को दुरुपयोग के रोकने के लिए अनेकों उपाय किए हैं, जिसमें भारत सरकार आईटी अधिनियम 2000 और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेटी और सर्टिन के विभिन्न साइबर सुरक्षा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करती है। एग्रीस्टेक किसानों की जानकारी को गोपनीय तरीके से रखता है, सार्वजनिक नहीं करता, ताकि केवल निर्धारित सिस्टम ही इसको पढ़ पाए, दूसरा कोई इसको पढ़ ना पाए। सुरक्षित एपीआई और टोकन आधारित प्रमाणीकरण सभी डेटा के आदान प्रदान को नियंत्रित करते हैं, जिससे डेटा तक नियंत्रित पहुंच सुनिश्चित होती है। हर कोई नहीं पहुंच सकता। इसके अलावा सरकार आईटी सिस्टम में संग्रहित डेटा की सुरक्षा के लिए इन सभी आईटी सिस्टम का नियमित सुरक्षा ऑडिट करती है। और इसलिए मैं माननीय सदस्य के माध्यम से सदन और किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसका केवल उपयोग होगा योजनाओं का लाभ लेने में, सुविधाएं लेने में। इससे भ्रष्टाचार रुकेगा, बेईमानी रुकेगी, धोखाधड़ी रुकेगी। कई दिनों में जो काम होता था, किसान घूमता था कई तरह के डेटा इकट्ठा करने के लिए, कागज के लिए, वो 1 मिनट में होगा। चाहे बैंक लोन हो, फसल बीमा का लाभ हो और किसी योजना का लाभ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ उठाना हो, तुरंत वो लाभ ले सकेगा। इसकी दुरुपयोग की संभावनाओं को पूरी तरह से निर्मूल किया गया है। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री। धन्यवाद सभापति महोदय। मेरा दूसरा प्रश्न है, किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए सरकार ने क्या प्राविधान किए हैं तथा शिकायत निवारण के चैनल क्या हैं? माननीय मंत्री। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आभारी हूँ। सवाल भी बहुत अच्छा है। किसान को ये जानना चाहिए कि अगर शिकायतें कोई है तो उसके समाधान की व्यवस्थाएं क्या की जाएगी। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो किसान रजिस्ट्री है ये राज्य में राजस्व रिकॉर्ड से जोड़ी गई है और राजस्व विभाग द्वारा अपने राजस्व रिकॉर्ड को समय पर अपडेट किए जाने के कारण ये भी अपडेट हो जाती है। मान लीजिए किसी किसान ने अपनी जमीन बेच दी किसी और को, तो तत्काल किसान रजिस्ट्री में अपडेट हो जाएगा कि ये जमीन शिवराज के नाम नहीं है, गिरिराज के नाम है, तो तुरंत अपडेट किया जा सकेगा उसको। पहले कई बार म्यूटेशन होता ही नहीं था, जमीन बेच दी, म्यूटेशन कराया नहीं, तो पता ही नहीं था वास्तविक स्थिति क्या है। किसी की मृत्यु हो गई तो ये अपडेट ही नहीं होता था कि अब ये रहे ही नहीं। अब तत्काल अपडेट हो जाएगा कि ये नहीं है, अब इनकी जमीन, इनके वारिस ये है, इनके नाम आ गई। तो इसको अपडेट करने की पूरी व्यवस्था की गई है। किसान रजिस्ट्री बनाने के दौरान कुछ समस्याएं जरूर आती है, जैसे संयुक्त भूमि का स्वामित्व का कोई मामला है। एक पिता की मृत्यु हुई, 4 बेटे हैं, तो चारों के नाम पर वो जमीन आ गई, तो क्या करें, इस तरह की कुछ समस्या आती है। इन स्थितियों को भी हल करने के लिए मंत्रालय राज्य को अपने भूमि स्वामित्व को अपडेट करने और संयुक्त मालिकों और मृत मालिक आदि की समस्या से निपटने के लिए नियमों को स्पष्ट कर राज्यों की नीति के अनुसार एप्लीकेशन में जरूरी तकनीकी सुधार करने के भी सुझाव दे रहे हैं। ऐसे समाधान के बाद भी यदि किसानों के भूमि रिकॉर्ड अपडेट नहीं किए गए हों तो कोई विसंगति पाई गई हो तो शिकायत निवारण तंत्र ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम किसानों की मदद करता है। इसमें किसान रजिस्ट्री, मोबाइल या वेब एप्लीकेशन का उपयोग कर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं या ऑफलाइन मोड में भी शिकायत दर्ज करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर में भी जाके वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हेल्पलाइन के माध्यम से भी समाधान प्राप्त कर सकते हैं। शिकायतों को गांव, जिला या राज्य स्तर के कृषि और राजस्व विभागों में भी
दर्ज करवाया जा सकता है और संबंधित अधिकारियों द्वारा उनको हल करवाया जा सकता है। प्लीज डॉक्टर फौजिया खान नॉट प्रेजेंट, मिस्टर ए रहीम नॉट प्रेजेंट, डॉक्टर अजीत गोपछड़े जी। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे प्रश्न पूछने को अनुमति दी है। जननेता लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी युग में कृषि क्षेत्र में बहुत अच्छे क्रांतिकारी निर्णय लिए जा रहे हैं। इसका किसानों को बहुत लाभ हो रहा है। मैं माननीय कृषि मंत्री जी को आपके माध्यम से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि फसल सर्वेक्षण को भू अभिलेखों से किस प्रकार जोड़ा जा रहा है और यह क्यों महत्वपूर्ण है। डिजिटल फसल सर्वेक्षण और किसानों के लिए बीमा दावों के निपटान और आपदा राहत में तेजी लाने में हमारा कृषि मंत्रालय किसानों को कैसे मदद कर रहा है। धन्यवाद। माननीय उपसभापति महोदय, डिजिटल फसल सर्वेक्षण में जो बोई गई फसलें हैं उनका रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है और ये रिकॉर्ड एक यूनिक फार्म आईडी और खेत के जियो कोऑर्डिनेट के से जुड़ा होता है। प्रत्येक खेत को फार्म आईडी को किसान आईडी के साथ जोड़ दिया जाता है, जो फसल सर्वेक्षण डेटा को किसान के भूमि रिकॉर्ड के साथ सहज रूप से जोड़ देता है, जोड़ने में सक्षम बनाता है। इस तरह के लिंकेज से किसानों और सरकार को कृषि के लाभ को सही वितरण करने की में मदद मिलती है। अब डिजिटल फसल सर्वेक्षण में पूरा का पूरा सर्वे करते हैं। किसान का खेत में बोई गई फसल, इंटर क्रॉपिंग है तो कई बार पता ही नहीं चलता। 1 एकड़ जमीन है और 15 डिसमिल में उसने अलग फसल बोई है तो उसको चक्कर लगाने पड़ते थे। अब अगर उसने चने के साथ तुअर भी बोई है तो डिजिटल सर्वेक्षण में ये स्पष्ट रूप से पता चल जाता है। माननीय सभापति महोदय, डिजिटल फसल सर्वेक्षण का उपयोग किसान द्वारा बोई गई फसलों का मौसमवार डाटा प्राप्त करने में भी होता है। ये किसानों के लिए डिजिटली कृषि की समस्याओं के समाधान और सेवाओं का आधार बन जाता है। मैं आपसे निवेदन भी करना चाहता हूं कि लिंकेज ये सुनिश्चित करता है कि पीएम किसान जैसी योजनाओं का सभी पात्र किसानों को तत्काल लाभ मिल जाए। ये प्रशासन के लिए डुप्लीकेट दावों की समस्या को खत्म करते हुए पूर्व लाभार्थी मतलब जो अब किसान नहीं है को रिकॉर्ड से हटाते हुए धोखाधड़ी को रोकने और सेवा के वितरण में सुधार लाने में भी मदद करता है। डीसीएस के माध्यम से बीमा की बात पूछी वो और बता के अपनी बात समाप्त करूंगा। बीमा दावों का भी आसानी से निपटारा किया जा सकता है। पहले बीमा के दावों के निपटारे के लिए प्लीज लिसन योर क्वेश्चन। बीमा के दावों के निपटारे के लिए खेत में जाके मैनुअली सर्वे होता था, तो पूरा रिकॉर्ड है। बीमा कंपनी के पास जाओ, फार्मर आईडी में पूरा रिकॉर्ड मौजूद है कि ये फसल बोई थी, और डिजिटली सर्वेक्षण के कारण तुरंत ये पता चल जाता है कि नुकसान कितना हुआ है, तो कितना नुकसान हुआ। पहले क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के कारण बीमा कंपनियों के और राज्य सरकार को बीच में विवाद होता था, लेकिन अब पूरी तरह से प्रमाणित डेटा आता तो तत्काल बीमा कंपनी क्लेम किसान को दे सकती है और किसान के खाते में पैसा आ सकता है। तो बीमा के क्लेम का भुगतान भी बहुत जल्दी और बहुत आसानी से हो जाता है। माननीय मंत्री जी, एक सवाल बाद अगला सवाल आपका थम्बी दुर्वे जी का ऑफिस से है, तो उनका अनुरोध है कि थोड़ा ब्रीफ करेंगे तो उनको मौका मिलेगा। प्लीज आप कन्वेड योर रिक्वेस्ट, आप कन्वेड योर रिक्वेस्ट प्लीज। श्री सुभाष बराला जी संक्षिप्त एक क्वेश्चन पूछें। धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय जी। माननीय मंत्री जी ने डिजिटल कृषि मिशन के बारे में बहुत विस्तार से बताया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय मंत्री जी ने बहुत ही उल्लेखनीय कार्य कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों का उपयोग करके कृषि क्षेत्र को बहुत बड़ा लाभ प्रदान किया है। तो मैं उपसभापति महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपके पास तो सारा ब्यौरा फसल की किस फसल की कितनी बुआई किस क्षेत्र के अंदर हुई है ये सारा आता है, तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज की बुआई में कितनी वृद्धि का रिकॉर्ड आपके पास आया है और भविष्य में इसमें और ज्यादा वृद्धि किस प्रकार से, इसके लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। धन्यवाद। सुभाष बराला जी युवा और विद्वान सांसद है। माननीय उपसभापति महोदय, अभी 4 करोड़ 60 लाख किसानों की फार्मर आईडी बनी है। उन्होंने मिलेट्स के बारे में
जानकारी प्राप्त करना चाहिए है कि मिलेट्स का क्षेत्र कितना बढ़ा है। मिलेट्स के क्षेत्र में वृद्धि के लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं और उन प्रयत्नों के कारण मिलेट्स का लगातार क्षेत्र बढ़ रहा है। और डिजिटल कृषि क्रांति भी इसलिए है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किसान कौन सी फसल उगाए ये भी पता किया जा सकता है और इसलिए मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ाने के भी लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं। लेकिन मूल प्रश्न से ये प्रश्न उद्भूत नहीं हो रहा है, लेकिन मैं उनके भाव का आदर करता हूं। धन्यवाद। डॉक्टर भागवत कराड़ जी, लास्ट सप्लीमेंट्री। माननीय उपसभापति महोदय, आपके माध्यम से सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी फसल बीमा योजना जो हमारे देश में शुरू हुई है। माननीय मंत्री जी को मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये फसल बीमा योजना में पेपर में बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं कि फ्रॉड हो रहा है और इलीगल नोटिफिकेशन ऑफ द फार्मर्स लैंड ऑन समबडीज नेम, तो ये सही है क्या? अगर सही है तो ऐसे कितने फ्रॉड्स फसल बीमा में योजना में आए हैं और उसके लिए सरकार योजना क्या कर रही है? धन्यवाद। माननीय उपसभापति महोदय, ये डिजिटल कृषि मिशन इसलिए है कि हम सही डेटा अपने पास रखें ताकि फसल जिनका नुकसान हुआ है उनकी जानकारी और फसल की क्षति का आकलन भी डिजिटली प्राप्त किया जा सके, सही प्राप्त किया जा सके। इस डिजिटल कृषि मिशन के बाद ऐसे फ्रॉड बिल्कुल नहीं होंगे, ये मेरा विश्वास है। जहां तक अभी कोई शिकायत आती है तो शिकायत निवारण के लिए हमारे पास एक तंत्र है। जैसे मैं महाराष्ट्र के बारे में भी बताना चाहूंगा कि लगभग 80,000 के आसपास शिकायतें फसल बीमा योजना में गलत दावों की आई थी। हम तब जांच करते हैं और जांच के बाद दोषी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो ऐसी शिकायतों की जांच का भी एक तंत्र बना हुआ है। धन्यवाद। नाउ क्वेश्चन नंबर 304, डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल। प्रश्न संख्या 304, क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को देश में बार बार होने वाले साइबर हमलों और उनके तकनीकी रूप से विकसित स्वरूप के बारे में जानकारी है? यदि हाँ, तो इन खतरों से निपटने के लिए साइबर सुरक्षा अवसंरचना अपर्याप्त होने के क्या कारण हैं? विगत 3 वर्षों के दौरान सूचित की गई साइबर सुरक्षा संबंधी घटनाओं का ब्यौरा क्या है और इन हमलों के कारण किस सीमा तक डेटा की चोरी हुई है? क्या सरकार ने कोई मजबूत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा कार्यनीति तैयार की है? यदि हाँ, तो इसके कार्यान्वित नहीं हो पाने के क्या कारण हैं? और महत्वपूर्ण अवसंरचना और निजी डेटा की साइबर खतरों से सुरक्षा के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? माननीय मंत्री जी। श्री अश्विनी वैष्णव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। सर, विवरण सदन के पटल पर रखा गया। फर्स्ट सप्लीमेंट्री, निरंजन विशी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आज देश में साइबर अटैक बढ़ रहा है, किसके ऊपर कि हमारा देश का जो कस्टमर्स है, बैंक कस्टमर्स, जो डिपॉजिटर्स, उसके ऊपर महोदय भारत में 30 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स का बैंक खाता खाली हो गया है, कम से कम 28,000 करोड़ से ज़्यादा। तो हमारा माननीय मंत्री जी ने वो सिटीजन्स डाटा को प्रोटेक्शन करने के लिए, बैंक फ्रॉड को रोकने के लिए और बैंक डिपॉजिटर्स के खाता में जो साइबर अटैक होता है, वो साइबर अटैक को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाते हैं? और जो 28,000 करोड़ से ज़्यादा लोगों का बैंक फ्रॉड हुआ है, साइबर अटैक हुआ है, साइबर क्रिमिनल ने जो सब खाता खाली कर देते हैं, वो गरीब हो, धनी हो, अधिकारी हो, बेकारी हो, सबका, तो उसका वो वापस लाने के लिए उसका बैंक खाता को वो सेविंग डिपॉजिट, सेविंग अमाउंट कैसे रिटर्न होगा, कैसे उसको मिलेगा डिपॉजिटर्स को? तो इसके लिए हमारा माननीय मंत्रालय क्या कदम उठा रहे हैं? धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, साइबर अटैक्स हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को किस तरह से फेस करें, इसके लिए सरकार ने बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल, टेक्निकल और अवेयरनेस के माध्यम से सभी नागरिकों को इसके लिए तैयार करने का काम किया है। माननीय सभापति महोदय, लीगल तरीके से काम करने के लिए पहले तो एक डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट सदन से पास हुआ है
और उससे बहुत बड़े अच्छे प्रावधान आए। कई तरह के जो आईटी एक्ट के अंदर प्रावधान है उनको मजबूत किया गया है। साथ ही साथ जो भारत की नई न्याय संहिता बनी है उसमें भी नए प्रावधान किए गए, जिसमें साइबर क्राइम्स को, जहां पर भी साइबर क्रिमिनल्स कुछ अटेम्प्ट करते हैं उनके ऊपर बड़ा पनिशमेंट हो, वो व्यवस्था की गई है सेक्शन 111 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। टेक्निकल माध्यम से रोकने के लिए भी बहुत सारे प्रयास किए गए। इसमें I4C का सबसे बड़ा महत्व है। एक है I4C में बेसिकली होम मिनिस्ट्री में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ, राज्य सरकारों के साथ, बैंक्स के साथ और कई तरह के सेक्टर्स के साथ मिलके एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से इसका अटैक को विफल करने का प्रयास किया जाता है और बहुत अच्छे इसके परिणाम भी आए हैं। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सभी माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा, G20 हो या अयोध्या जी में भगवान श्री राम का जब भव्य मंदिर बना तब बहुत मेजर तरीके से, बहुत ही कंसर्टेड तरीके से भारत पर साइबर अटैक किए गए थे। उन सबको बहुत, उस चुनौती को बहुत एक अच्छे प्रभावी तरीके से रोक पाए थे। धन्यवाद। माननीय अयोध्या रामी रेड्डी। Thank you, sir. I want to ask the Honorable Minister whether there is a robust national security, cyber security strategy has been developed, or if so, why it is not yet implemented? Thank you. Thank you. माननीय सभापति महोदय, देश में आज एक बहुत ही रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है और उस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ही केयरफुल तरीके से किया जा रहा है और इसका एक रिजल्ट मैं आपको बताना चाहूँगा। भारत की रैंकिंग पहले ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्सेस में करीब 30-40 के आसपास होती थी, आज भारत की रैंकिंग टॉप 10 में आ गई है और ये उसी का परिणाम है कि बहुत सारे टेक्नो लीगल मेजर्स को लिया गया है। बाकी देशों के कंपैरिजन में भारत की जो एक अलग पहचान बनी है, वो पहचान बनी है कि कई देशों ने केवल लीगल मेथड्स अपनाए, लेकिन भारत ने इसे टेक्निकल और लीगल इन दोनों मेथड्स का कॉम्बिनेशन बनाया। हमारे IITs के साथ मिलके, कई रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलके कई नए तरह के टेक्निकल टूल्स और टेक्निकल मेथड्स का इन्वेंशन किया जा रहा है, जो आज दुनिया के और कई देश इसका उपयोग करना चाहते हैं। तो एक तरीके से एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के तहत काम चल रहा है। लास्ट सप्लीमेंट्री उपेंद्र कुशवाहा जी। तो मेरा जवाब आ गया। धन्यवाद। थैंक यू। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 305, डॉक्टर M थम्बीदुरई। प्रश्न संख्या 305, क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या ये सच है कि लगभग 70% आबादी कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर निर्भर है? ख, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? ग, क्या ये भी सच है कि उनकी आर्थिक स्थिति में आज तक सुधार नहीं हुआ है? घ, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? और अंग, सरकार द्वारा किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? थैंक यू सर। माननीय मंत्री जी। श्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। माननीय सभापति महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है। फर्स्ट सप्लीमेंट्री। Agriculture is a state subject, Minister said, sir. At the same time, however, Government of India is committed to enhance the welfare of the farmers, make agriculture more remunerative, sir. Just I want to know, water is very important. Whether he will persist, other is concerned ministry, to see the Kaveri water will be released properly for the Tamil Nadu people. माननीय उपसभापति महोदय, मेरा विभाग कृषि और किसान कल्याण विभाग है और राज्यों के बीच अगर जल का बंटवारे का कोई सवाल है तो वो मेरे विभाग का विषय नहीं है और ये मूल प्रश्न से उद्भूत भी नहीं होता। सेकंड सप्लीमेंट्री। Next supplementary, sir. Regarding MSP, sir, agriculture, regarding recently, DMK government promised that they are going to bring agricultural MSP price they are going to implement for the paddy and sugarcane. And also, they promised to give the interest-free loan for the farmers. And also, they promised cooperative banks and accessible to the farmers. And also, the farmers have put the jewels and everything in the bank, thinking that the government will waive off that. Whether these kind of problems are there,
whether save the farmers, give the MSP price, and whatever the DMK gave the wrong promises at the time, whether the central government aware of that and how to help for the Tamil Nadu farmers, which DMK government failed to do that. Just I want to know. माननीय उपसभापति महोदय, हम जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में ये बीजेपी और एनडीए का मूल मंत्र है। चुनाव में भी जो वचन देते हैं उनको अक्षरशः पूरा करने का काम करती है नरेंद्र मोदी जी की सरकार। लेकिन क्योंकि मोदी की गारंटी पूरा करने की गारंटी है, लेकिन आजकल कई राजनीतिक दल जब चुनाव आते हैं तो झूठे वादे असत्य वादे कर लेते हैं। कोई कर्जा माफ कर देंगे, कोई बिना ब्याज के लोन दे देंगे। अब ऐसे ही वादे के बारे में माननीय हमारे विद्वान सदस्य यहाँ चर्चा कर रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वादा करते हैं उनको वादा पूरा भी करना चाहिए। अगर वचन पूरा नहीं किया तो ये धोखाधड़ी है किसानों के साथ, राज्य के साथ, राज्य की जनता के साथ। और इसलिए इस तरह के वादे पूरा करने के लिए जनता ही उनको दंडित करेगी। जहां तक हमारी सरकार का सवाल है किसानों के कल्याण की, माननीय उपसभापति महोदय, अनेकों योजनाएं बनाई है। और ये तो मोदी जी की सरकार है जिनने हर किसान के खाते में 6,000 रुपया हर साल डालने का फैसला किया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के नाम। अभी किसान को कम ब्याज पर कर्ज मिले इसलिए मोदी जी की सरकार है जिसने किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से इफेक्टिव 4% ब्याज पर ऋण देने का फैसला किया। और अब तो ऋण की सीमा भी 3 लाख से 5 लाख रुपया तक बढ़ाने का काम किया है ताकि सुलभ और आसान ऋण कम ब्याज पर किसानों को उपलब्ध हो सके। और माननीय उपसभापति महोदय, किसानों को सस्ता खाद मिले इसलिए 2,54,000 करोड़ रुपया तक की अगर फर्टिलाइजर सब्सिडी देने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। हम किसान को राहत देने के लिए कटिबद्ध हैं। और इसलिए इरिगेशन के बारे में सवाल पूछ रहे थे, सूक्ष्म सिंचाई योजना मिशन पर ड्राप मोर क्रॉप, उसके लिए किसानों को सस्ते दाम पर 45 से लेकर 55% तक की सब्सिडी कौन देते हैं? केवल नरेंद्र मोदी जी की सरकार देने का काम करती है। मोदी जी की सरकार है जो सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाती है और मोदी जी की सरकार है जो रिकॉर्ड एमएसपी की खरीदी करती है, रिकॉर्ड। और ये मोदी जी की सरकार है जो 50% एमएसपी की जो लागत जो आती है उत्पादन में उस पर 50% से ज्यादा मुनाफा देके एमएसपी तय करने का काम करती है। माननीय उपसभापति महोदय, मैं एक ही उदाहरण बताऊंगा। पिछली जब सरकारें थी तो दाल केवल 6 लाख दलहन की फसल 6 लाख मीट्रिक टन खरीदी गई थी। ये मोदी जी की सरकार है गारंटी पूरा करने की गारंटी कि जिन्होंने 1,73,000 लाख मीट्रिक टन खरीदने का चमत्कार किया था। और इसलिए किसानों के कल्याण की कई योजनाएं मोदी जी की सरकार ने बनाई है और जिनका लाभ तमिलनाडु की जनता को भी मिल रहा है। तमिलनाडु की जनता को भी केंद्र सरकार का लाभ देने के लिए हम कटिबद्ध हैं और इन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उन किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। माया नारनौलिया जी। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में हमारे कृषि मंत्री है सम्माननीय आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी कृषि क्षेत्र में एवं किसानों के लिए अनुकरणीय कार्य कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न है कि किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और उसकी स्थिति क्या है? सरकार ने किसानों को अधिक आय प्राप्त करने के लिए एमएसपी पर क्या उपाय किए हैं? माननीय सभापति महोदय, आय बढ़े इसलिए किसान सम्मान निधि, आय बढ़े इसलिए फर्टिलाइजर सब्सिडी, आय बढ़े इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड पर संस्थागत लोन जो पहले केवल 7 लाख करोड़ रुपया मिलता था अब बढ़ के 25 लाख करोड़ हो गया, 25 लाख करोड़ रुपया। आय बढ़े इसलिए दलहन मिशन, तिलहन मिशन, एक नहीं अनेकों उपाय किसानों की आय बढ़ाने के लिए मोदी जी की सरकार निरंतर कर रही है।
और एमएसपी के मामले में मैं फिर कहना चाहूंगा कि किसान को लाभकारी मूल्य देकर एमएसपी तय करने का काम अगर किया है तो मोदी जी की सरकार ने किया है। एमएसपी लगातार बढ़ाई गई। अगर आप माननीय सभापति महोदय, समय कम है, लेकिन गेहूं हो, चावल हो, दलहन हो, तिलहन हो, आप देख लीजिए लगातार एमएसपी बढ़ाई जा रही है और किसानों के हितों को संरक्षित करने के लिए आयात निर्यात नीति भी बनाई जा रही है। माननीय सभापति महोदय, अभी पिछले दिनों मसूर के आयात पर 10% हमने आयात शुल्क लगाने का काम किया ताकि यहाँ के किसानों को ठीक दाम मिल सके, और अभी फैसला किया चने के आयात पर भी 10% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी ताकि किसानों को सही दाम मिल सके और उनकी आय बढ़ सके। ऐसे एक ने अनेकों कदम उठाए जा रहे हैं। अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू वर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर in Rajya Sabha today. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashvani.